All right. So, first of all, understanding about sattvic diet, it is quite very simple. Okay. जो food आप usually अभी भी ले रहे हैं, somewhere or the other, we are following in a sattvic diet. And we know that food is such a very important part in our regular schedule. And it plays a very important vital thing in our body. Right. And a good food, generally अगर हम देखेंगे a tasty based food or a food which ideally smells good, looks good, right? All of this is going to create in a good effect. We have in a good mind and our body का एक connection होती है. So when the food is ideally good, we feel good about it. We feel good that, okay, the food that I've eaten is going to make me sure that it is going to be giving you a good health, overall nature in terms of benefits, disease-free life. All of these benefits is definitely going to be there, right? And one thing that I was also been telling you, in terms of sattvic food, agar hum dekhenge, it's not so very different along with the food what we eat nowadays as well, right? But it all depends on the type of choices that you make in terms of foods. Specifically, agar hum dekhenge, aapke grains ke liye, aapke vegetables, aapke fruits ke liye, the kind of oils that is also going to be used. We're going to be discussing about the type of oils nowadays in the market. हम किस तरीके से हम wisely choose करेंगे हमारी oils. We will also be discussing about the different three doshas. Ideally, if you would have heard about sattvic, तो definitely you would have heard about rajasic, tamasic food. तो ये तीन categories के बारे में भी हम discuss करेंगे, how it is going to have an effect along with body, right? And the benefits in terms जब आप sattvic food follow करते हैं, how this is going to have a great effect not only in terms of our mind, in terms of balancing our diabetes, in terms of having a good control of our inflammation in our body. And as Neha also mentioned, inflammation jitna kam hoga, the better is going to be your skin, better is going to be your overall immunity. So ye sare step by step processes is going to be having a good benefit here. Okay. So I'll start presenting my screen. It's a very simple thing for us to understand. Any doubts, any issues that you have, feel free to drop me a message over the chat. We'll be all taking in the messages and the questions at the end. So I'll be just sharing my screen. All of you can just let me know a yes if the screen is visible. I'm just sharing my screen. I hope my screen is visible. Yes, Shashi. Perfect. Okay. So we'll start along with it. So I had just started along with a very simple introduction. समझने के लिए कि हमारा जो ओवरऑल इम्पैक्ट होती है सात्विक के लिए, right? It is going to be a holistic approach. Not only we are going to be having a discussion along with how we are going to keep in a balance, but this is one of the most important Indian tradition जो आता जा रही है. I am pretty much sure most of your grandparents, most of your ancestors have been following this somewhere or the other, and they have been quite very insistent कि आप भी follow कर लो, आपके family के overall members को follow करने के लिए भी mention करते हैं, specifically your children has been really very advised. तो ये एक natural pathway भी बन जाती है, not only in terms of balancing diabetes, but a holistic approach, right? तो पहली चीज अगर हम देखेंगे in terms of sattvic, right? तो one important thing that we will be working on is first trying to understand कि ये सात्विक exactly है क्या, और सात्विक के साथ साथ आपका राजसिक, तामसिक food, what are these categories? Okay, generally in our body and in terms of food option, we require in we have in your overall अगर हम देखेंगे आपका पित्त शरीर, right? आपका overall you have in different types, right? तो इसी की तरह आपके फूड ऑप्शंस के लिए भी यू हैव इन 3 डिफरेंट कैटेगरीज, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक. So when we're talking about sattvic, all of these sattvic related foods are going to be close to your mother nature. All of the foods that such as for your grains, your millets, your fruits, your vegetables, your nuts and seeds, आपका good fat such as your coconut, आपका almonds, आपका cashew nut, or your walnuts, right?
हर्ब स्पेसिफिकली अगर हम देखेंगे, यू हैव इन योर जिंजर। जिंजर अगर हम देखेंगे, दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉपर्टी, आपके त्रिगुणास को काफी अच्छी तरीके से ये बैलेंस आउट करती है, राइट। इसीलिए सात्विक फूड में जिंजर का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट। और इसके साथ अगर हम देखेंगे, बहुत सारे आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आपका स्प्राउट्स, माइक्रो ग्रीन्स, सो ऑल ऑफ दीज आर रियली वेरी इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ सात्विक फूड। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट राजस्टिक फूड, ये ज्यादातर आएगा आपके बहुत सारे प्रोसेस्ड आइटम्स, ओके, जैसे फूड विच इज हैविंग एक्सेसिव सॉल्ट, ओके, बहुत ज्यादा हाई सिंथेटिक बेस्ड विनेगर्स। आपका एप्पल साइडर विनेगर अगर हम देखेंगे, दिस इज गोइंग टू बी अनफिल्टर्ड, अनपैस्चराइज्ड, राइट। बट अगर हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ सिंथेटिक विनेगर, दैट विल कम अंडर योर राजसिक। स्पाइसी बेस्ड फूड, एक्सेसिव फैटी बेस्ड फूड, एक्सेसिव स्पाइसी बेस्ड फूड, पंजेंट फूड्स। अगर हम देखेंगे पंजेंट फूड में किसी भी तरीके की हाईली फर्मेंटेड फूड्स, राइट, टी, कॉफी, रिफाइंड प्रोडक्ट्स, हाई प्रोसेस्ड फूड, ये सारे आपके राजस्टिक फूड में आती है। तामसिक अगर हम स्पेसिफिकली देखेंगे, all of these foods are particularly which foods and आपका habits which particularly creates more of the inflammation in the body, right? नॉन वेजिटेरियन फूड अगर हम देखेंगे, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ सात्विक अगर हम देखेंगे, वी मेजरली फोकस ऑन अ प्लांट बेस्ड डाइट, ओके। सो वी कैन गिव इट अ स्मॉल स्टार्ट, 1 meal a day, या फिर वीकली अगर हम देखेंगे 2 meals in a week, we can start giving along with a sattvic start, right? And it's very easy to prepare as well, right? क्योंकि अगर हम देखेंगे सारे all of these vegetables, all of these fruits, we are going to try to keep it as organic as possible. Preparation, जब आप वेजिटेबल्स भी ग्रो कर रहे हैं, वी कैन स्टार्ट अलोंग विद अ स्मॉल किचन गार्डन। ये भी इट इज अ वेरी गुड स्टार्ट ऑफ मेकिंग श्योर कि आप सात्विक से आप शुरू कर रहे हैं, राइट। कमिंग टू तामसिक फूड, तो आपका ऑनियन, योर गार्लिक, ऑल ऑफ दीज आर गोइंग टू बी अ फॉर्म ऑफ द वेजिटेबल्स, बट दे आर आइडियली कंसिडर इनटू योर तामसिक फूड्स ओवर हियर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पंजेंट ऑर्डर भी क्रिएट करती है, alongside your alcohol, your cigarette, any kind of food which has an high artificial flavoring agents या फिर किसी भी तरह की preservatives, and अगर हम specifically भी देखेंगे very high refined foods as well, तो ये भी आपके राजसिक एंड तामसिक फूड में ये कैटेगराइज होते हैं। सो सिंपल टर्म में अगर हम देखेंगे, फ्रेश fruits, vegetables, freshly grown organic foods, all of these will come under your sattvic food. Now, when we're talking about, again, simply classifying it in for us to understand कि exactly हम क्या-क्या food options prefer करेंगे सात्विक में, prefer foods which are going to be completely fresh, okay? Fresh, seasonal fruits, unprocessed is going to be the best way to start along with. As मैं आपको mention भी कर रही थी, kitchen garden के साथ भी हम शुरू कर सकते हैं, small vegetables that we can try growing. So you're pretty much sure कि आप ये organic आप खुद बना रहे हैं घर पर, okay? Wholesome food, as I was talking about, कि जितना भी आप clean ingredients रखते हैं, it is not going to cause any kind of inflammation in the body, okay? Milk and milk products भी आपके सात्विक डाइट में यहाँ पर कंसिडर होते हैं, but considering along with diabetes, we can do in a little bit of titration here. Milk अगर आप ले रहे हैं, try preferring along with the fresh milk, okay? And 150 to 200 ml ये हमारा maximum limit रख लेते हैं। छाछ हो गया, पनीर हो गया, घी का इस्तेमाल, ideally this is going to be much more of a better alternative option that you can go ahead along with, okay? But इसके साथ आपके सात्विक फूड अगर आप फॉलो कर रहे हैं, it is also very important that you are doing in mindful exclusions, right? ऐसे नहीं कि आप most of the time आप सात्विक ले रहे हैं, but few here and there आप किसी भी तरीके की तामसिक फूड या फिर आप राजसिक फूड यहाँ पर आप इंक्लूड कर रहे हैं। We can give in a short period of time. अगर आप सात्विक फूड फॉलो कर रहे हैं for 2 to 3 days, completely that 2 to 3 days we can give it a start along with a sattvic based food. या फिर स्मॉल स्टेप्स अगर आप इनिशिएट करना चाहते हैं, वन मील दैट वी कैन स्टार्ट अलोंग विद सात्विक फूड, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपका फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आप इंक्रीज कर सकते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज माइंडफुली हमें यहाँ पर प्रैक्टिस आउट करनी पड़ती है, राइट? नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ द फूड जो आप प्रेफर कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम द क्वांटिटी ऑफ द फूड दैट वी आर ईटिंग, द प्रिपरेशन टेक्निक दैट वी आर डूइंग, also along with what kind of utensils आप कुक कर रहे हैं, this also matters.
ओके, नाउ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बेनिफिट्स। इसके ना बहुत सारे अच्छे अच्छे बेनिफिट्स होते हैं, बट इट हैज एन अ रियली गुड इफेक्ट व्हेन वी आर फॉलोइंग इट फॉर अ गुड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फर्स्ट थिंग इज, जब हम ब्लड शुगर लेवल्स की बात करते हैं ओवर हियर, आप फोकस कर रहे हैं ऑन क्लीन बेस्ड इंग्रेडिएंट्स, किसी भी तरीके की प्रोसेस्ड फूड्स नहीं होती है। तो जो भी आप वेजिटेबल्स ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, एनी काइंड ऑफ ग्रेन्स जो आप ले रहे हैं, मिलेट्स आप ले रहे हैं, ऑल ऑफ दीज आर होल ग्रेन्स। और अगर हम देखेंगे होल ग्रेन्स में जनरली दे हैव इन मॉडरेट टू लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, जो आपके शुगर लेवल्स को स्पाइक अप करने के लिए काफी ज्यादा बैलेंस आउट मेंटेन करती है, right? Unless and until if you're going along with high processed food, they generally have a higher glycemic index, causing a higher spike of the sugar spike, right? तो फर्स्ट थिंग है, शुगर का बैलेंस आउट करना बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्रिएट करता है। सेकेंड थिंग, ऑटोमेटिकली व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन अ गुड हेल्दी डाइट, मेकिंग श्योर कि आपका कैलोरी बेनिफिट्स यहाँ पर बैलेंस आउट हो रही है, you're taking in clean based ingredients, you're making sure that you're having in proper meal hour gaps, तो बिकॉज ऑफ हाई कंटेंट ऑफ वेजिटेबल्स फ्रूट्स, ये ऑटोमेटिकली आपका डाइट फाइबर रिच यहाँ पर मेंटेन हो जाती है। एंड वी आर प्रिटी मच श्योर, राइट, आपके ओवरऑल हेल्थ कोचेस भी मेंशन करते हैं दिस फॉलोइंग इन योर 50-25-25 रूल प्रिंसिपल। जब आप अच्छी तरीके से वेजिटेबल्स का इंक्लूजन भी करते हैं, your fiber is getting very well balanced off, right? And fiber क्या होता है, आपका good soluble of fiber अगर हम देखते हैं, this ideally creates in a layer around your stomach. अब मान लो कि ये आपका स्टमक है, तो जब आप फाइबर पहले लेते हैं, इट क्रिएट्स इन अ गुड कोटिंग अराउंड योर स्टमक, और उसके बाद जब आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, देयर इज अ वेरी स्लो कंटेंट ऑफ शुगर रिलीज, एंड दिस क्रिएट्स इन अ वेरी गुड कंट्रोल ऑफ आवर ओवरऑल पोस्ट मील शुगर्स, राइट? और ये ऑटोमेटिकली आपके सात्विक फूड में हो रहे हैं बिकॉज यू आर ऑलरेडी इंक्लूडिंग इन गुड अमाउंट ऑफ योर वेजिटेबल्स, राइट? एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हार्ट वेलबींग, ओवरऑल जब आप प्लांट सोर्स ऑफ वेजिटेबल्स, प्लांट सोर्स ऑफ प्रोडक्ट्स आप प्रेफर कर रहे, ऑटोमेटिकली द कोलेस्ट्रॉल इम्पैक्ट इज गोइंग टू बी लेसर, बिकॉज प्लांट्स एंड प्लांट सोर्सेस में अगर हम देखेंगे, आपका फाइटोस्टेरॉल एक नाम होती है, राइट? जैसे कोलेस्टेरॉल होती है, कोलेस्ट्रॉल इज आइडियली अवेलेबल मोस्टली इन योर एनिमल सोर्स प्रोडक्ट्स, प्लांट सोर्स प्रोडक्ट में ऐसे ही आपका फाइटोस्टेरॉल होती है, राइट? जो आपके ओवरऑल रिडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल क्रिएट करता है। बट वन थिंग दैट वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर प्लांट सोर्स तो हो गई, बट व्हाट अबाउट द इन्फ्लेमेशन? ओके, इसीलिए इन टर्म्स ऑफ ऑयल आई जस्ट वांटेड टू टेल यू, अगर आप सात्विक फूड बना रहे हैं, ट्राई प्रेफरिंग इन अ गुड सोर्स ऑफ अ गुड फैट हियर, ओके? कोकोनट के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? स्पेसिफिकली अगर हम ऑयल्स की बात करेंगे, वी हैव 3 कैटेगरीज, ओके? एक सोर्स ऑफ ऑयल विच इज आइडियली गोइंग टू बी इनबिल्ट, आपका जो इनविजिबल फैट की तरह होती है, जैसे आपका कोकोनट हो गया, आमंड हो गया, कैशनट हो गया, ऑल ऑफ दीज दे हैव एन ऑयल्स इटसेल्फ। तो आप किसी तरीके की यहाँ पर प्रोसेसिंग नहीं करते वो ऑयल्स को निकालने के लिए, एज इट इज अगर आप कोई खाना बना रहे हैं, कोई भी सैलेड्स आप ले रहे हैं, इसके ऊपर ही आप थोड़ा सा कोकोनट आप ग्रेट कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा आप नट्स एंड सीड्स ऐड कर सकते हैं, विच इज गोइंग टू ऐड इन द गुड फैट ओवर हियर। फाइटोस्टेरॉल का एडिशन यहाँ पर होती है, राइट? दिस इज स्टेज 1 ऑफ योर गुड फैट। स्टेज 2 क्या होती है? दिस इज आइडियली कंसिडर्ड एज योर कोल्ड प्रेस ऑयल्स, जो आइडियली हिंदी भाषा में बोलते हैं आपका कच्ची घानी का ऑयल, ओके? इसमें क्या होता है, यू आइडियली टेकन फॉर एग्जांपल कच्ची घानी आप सरसों का बना रहे हैं, या फिर आपका यू आर ट्राइंग टू मेक इट अलोंग विथ योर ग्राउंडनट ऑयल, यू आर ट्राइंग टू मेक इट अलोंग विथ योर कोकोनट ऑयल। तो आप क्या करते हैं, यू टेक इन द प्रोडक्ट, यू आइडियली टेक इन अ मोटार पेस्टिल, राइट? उसमें आप थोड़ा सा आप मिक्स भी करते हैं, आइडियली बहुत सारे चक्कीज भी आइडियली एरियाज में रहते हैं वेयर दे यूज इन दिस कोल्ड प्रेस्ड मेथड, एंड दे आइडियली टेक इन द ऑयल ओवर हियर। तो ओनली थिंग दैट इज बीन यूज्ड इज कि आपका फ्रिक्शन यहाँ पर क्रिएट होती है, जहां पर ऑयल का ओवरऑल सिक्रीशन होती है, राइट? दिस इज योर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। तो सात्विक फूड में वी आइडियली प्रेफर इन योर नेचुरल सोर्स ऑफ ऑयल एंड योर कोल्ड प्रेस टाइप ऑफ योर ऑयल। बट ये जो आपका थर्ड टाइप ऑफ ऑयल जो होती है, आइडियली इज गोइंग टू बी योर रिफाइंड ऑयल। ये रिफाइंड ऑयल बहुत ज्यादा, रिफाइंड विद द नेम रिफाइंड इटसेल्फ आप एक्चुअली पता लगा सकते हैं, इट हैज इन अ लॉट ऑफ प्रोसेसिंग, और ये सात्विक डाइट में आइडियली कंसिडर नहीं होती है, ओके?
क्योंकि इसमें ना आइडियली अगर हम देखेंगे 4 प्रोसेसेस होते हैं इन सिंपल टर्म्स फॉर अस टू अंडरस्टैंड। ये जो फर्स्ट वाली प्रोसेस होती है, कोई भी आपका सीड ऑयल होगी, बी इट इन द फॉर्म ऑफ योर सनफ्लावर ऑयल, एनी काइंड ऑफ ऑयल जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स में मिलती है, पहले ये क्या करते हैं, दे क्रिएट इन दिस ऑयल, ऑयल का प्रोडक्शन जो होती है इट इज फर्स्ट डन अलोंग विथ हीट। पहले हीटिंग टेक्निक से ऑयल को पहले निकालते हैं, राइट। ऑयल निकल जाने के बाद दे एड इन अ प्रोडक्ट समथिंग कॉल्ड एज योर हेक्सेन। ओके, हेक्सेन क्या होती है, इट इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ अ, इट इज आइडियली अगर हम देखेंगे बाई प्रोडक्ट जो होती है आपके पेट्रोलियम का एक बाई प्रोडक्ट होती है, जो आइडियली रिफाइंड प्रोडक्ट्स में, रिफाइंड ऑयल्स में ये यूज करती हैं। तो मेक श्योर कि आपका ओवरऑल ऑयल का लाइटनेस में, लाइक इट हैज टू बी मेंटेनिंग इन आपका ऑयल का लाइटनेस, ठीक है। तो ये हेक्सेन ऐड करते हैं। अब हेक्सेन तो यहाँ पर आपने ऐड कर लिया है, तो विच इज अ पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट। और उसके बाद क्या होता है, ये ऑयल को वापस ये ब्लीच आउट करते हैं, सारे किसी भी इम्प्योरिटीज अगर निकलती है तो ये सारा इसे ब्लीच आउट कर लेते हैं। अब ब्लीचिंग आउट करने के बाद अगेन दे ऐड इन एनी काइंड ऑफ अ डिओडराइजेशन, तो इसका बैलेंस आउट इन टर्म्स ऑफ किसी भी तरीके की फ्रेग्रेंस अगर रहती है तो उसे भी बैलेंस आउट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रिफाइंड ऑयल में कितने ज्यादा हमारे प्रोसेसिंग होते हैं। दैट्स व्हाई इट्स ऑलवेज वेरी बेनिफिशियल कि अगर आप किसी भी तरीके के ऑयल्स प्रेफर कर रहे हैं, गो अलोंग विद अ नेचुरल सोर्स और गो अलोंग विद अ कोल्ड प्रेस सोर्स, मच मोर बेटर। ओके, क्योंकि आपका ये यहाँ पर ऑलरेडी देयर इज अ गुड बेनिफिट ओवर हियर, एंड आपको ओमेगा 3 का रेशियो विच इज योर गुड फैट का रेशियो भी काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर इंक्रीज करेगा, राइट। एज वी वर टॉकिंग अबाउट ब्लड शुगर्स, राइट, आपका सात्विक का डाइट किस तरीके से बेनिफिशियल क्रिएट करते हैं, because of a good content of fiber in the diet. Not only it helps in terms of reducing आपका overall glucose absorption, but significantly ये क्या करता है, आपका post meal sugar का absorption and the balance out को ये काफी अच्छी तरीके से maintain करती है। This is the topmost priority when you focus on a sattvic diet. एंड जब आपका स्पाइक्स रिड्यूस होती है, ऑटोमेटिकली आपका ओवरऑल बेसलाइन शुगर लेवल्स भी रिड्यूस होती है, मैक्सिमम शुगर स्पाइक्स जो इंक्रीज होती है ये भी काफी अच्छी तरीके से रिड्यूस होती है, which brings in a good reduction of our HbA1c। अब HbA1c क्या होती है, आपका 3 महीने का एवरेज। तो अगर आप बैलेंस आउट कर रहे हैं आपका बेसलाइन शुगर लेवल्स, आपका मैक्सिमम शुगर लेवल्स का स्पाइक, ऑटोमेटिकली दिस हेल्प्स इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग आपका HbA1c का स्टेट, राइट। And as we were discussing, आपका सात्विक फूड मोस्टली आर गोइंग टू बी फूड्स which is going to be whole grains, इसीलिए इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर लो होती है, which automatically helps in terms of controlling in your sugars, right? This was the first major benefit when you follow in your sattvic diet, is going to be your blood sugar control. Second is going to be the weight management. अभी अगर आप लो ग्लाइसेमिक डाइट ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं विद अ गुड अमाउंट ऑफ फाइबर, ये आपका पोर्शन कंट्रोल को बैलेंस आउट कर लेता है। जब आप अच्छा खासा पोर्शन कंट्रोल मेंटेन करते हैं विद गुड अमाउंट ऑफ फाइबर्स, ये ऑटोमेटिकली आपका सटाइटी को मेंटेन कर लेता है। मतलब मान लो कि आप पहले आपका सैलेड्स ले रहे हैं, सो व्हाट हैपेंस, आपका पेट ऑलरेडी आधी तरीके से फिलअप हो जाएगा, राइट। और उसके बाद जब आप आपका मेजर मील शुरू करते हैं, पोर्शन कंट्रोल इज बीन हैपनिंग हियर। So this automatically helps not only in terms of balancing out your calorie requirement, satiety भी maintain होती है, and automatically with this positive benefit आपका weight loss का factor भी अच्छी तरीके से यहाँ पर maintain होती है, right? But यहाँ पर एक छोटा सा substitute आपको maintain करनी पड़ेगी, any types of snacking अगर आप कर रहे हैं, being in terms of a sattvic diet, snacking आपका maintain होगा किसी भी तरीके की salad के options, या फिर can be like your chickpea salad के options, एक fruit हो गया, fruit के साथ एक nut butter हो गया, इस तरीके के combinations जब आप follow करते हैं, this is still considered under a sattvic diet, okay? But अगर आप nut butters prefer कर रहे हैं, I would really advise you कि आप prefer कर लीजिए घर पर बनाने के लिए, or if you have a lack of time, so if you're purchasing in your nut butters, always check in your ingredients कि ingredients अगर आप peanut butter purchase कर रहे हैं या फिर almond butter purchase कर रहे हैं, it has to be one single ingredient. इसमें और किसी भी तरीके की ऑयल्स की सब्स्टिट्यूट एड ऑन नहीं होनी चाहिए, इट ओनली हैज टू बी वन बेस्ड इंग्रेडिएंट, पीनट 100% या फिर आमंड 100%, बिकॉज दीज इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी हैव इन द फैट इटसेल्फ, आपको एडिशनल यहाँ पर फैट लेने की जरूरत होती नहीं है, ओके। सो यू कैन मेक इट एट होम, और इफ यू आर गोइंग फ्रॉम आउटसाइड, ओनली वन बेस्ड इंग्रेडिएंट के साथ आप परचेस कर सकते हैं।
फ्यू गुड ब्रांड्स आइडियली मैं आपको मेंशन भी कर सकती हूँ। वन इज योर पेंटोला, ये काफी अच्छी तरीके से आपको सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट के साथ मिल जाती है। माई फिटनेस का भी एक ब्रांड है विच आइडियली इंक्लूड्स ओनली वन इंग्रेडिएंट बेस, जो आप प्रेफर कर सकते हैं। And if you're ideally going along with any kind of your flavors, rather than going along with a chocolate based flavor, आकर थोड़ा सा कोकोआ पाउडर आप जरूर ऐड कर सकते हैं। दिस इज स्टिल गोइंग टू बी अ गुड बेटर वे इन टर्म्स ऑफ बैलेंसिंग आउट आर किसी भी तरह की प्रोसेस्ड आइटम्स यहाँ पर लिमिट आउट होती है, राइट। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एज वी वर ऑल्सो डिस्कसिंग ओवर डायबिटीज, राइट, तो इंसुलिन सेंसिटिविटी तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें डिस्कस करना पड़ेगा, बिकॉज जब आप फोकस करते हैं प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादातर, दिस बिकॉज ऑफ अ गुड कंटेंट ऑफ फाइबर, राइट, ये आपका ओवरऑल इंसुलिन का जो रिसेप्टर्स है, ओवरऑल फंक्शनिंग इसका बेटर बनवाती है, राइट। तो अगर आपका मेंटेनेंस ऑफ द शुगर इन द ब्लड इज गेटिंग बैलेंस्ड आउट विथ अ गुड कंट्रोल ऑफ द शुगर्स इन योर सेल्स, तो ये काफी ज्यादा लाइक ओवरऑल अगर हम देखेंगे एक अच्छा खासा मेंटेनेंस क्रिएट करता है, विच रियली हेल्प्स इन टर्म्स ऑफ रेड्यूसिंग आपका इंसुलिन का रेसिस्टेंस। इंसुलिन का रेसिस्टेंस जितना कम होती है, आपका इंसुलिन का सेंसिटिविटी उतना बढ़ती है, राइट। एंड दिस ऑलवेज हैज एन गुड बेनिफिट, क्योंकि आप प्लांट सोर्स प्रोडक्ट्स एंड ज्यादातर आपका क्लीन इंग्रेडिएंट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, किसी भी तरह की प्रोसेस आइटम्स को आप कट डाउन कर रहे हैं। सो ऑटोमेटिकली दिस हैज एन ग्रेट बेनिफिट टू इंप्रूव इन योर इंसुलिन सेंसिटिविटी एज वेल। एंड इसके साथ साथ आप क्या फोकस करें, आपके गुड फैट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, रिफाइंड प्रोडक्ट्स भी आप कट डाउन कर रहे हैं। फैट्स भी अगर हम देखेंगे, जितना ज्यादा रिफाइंड फैट्स भी अगर आप ले रहे हैं, दिस ऑल्सो इंक्रीजेस आपके बॉडी का इन्फ्लेमेशन। जितना आपका बॉडी का इन्फ्लेमेशन भी इंक्रीज होती है, एट द सेम टाइम आपका इंसुलिन का रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होती है, एंड वापस वो घूम फिर कर आपका डायबिटीज के आसपास ही आ जाती है, राइट। तो जब आप सैचुरेटेड फैट ज्यादा आप इंक्रीज करते हैं, राइट, इन द डाइट, दिस इज गोइंग टू बी द प्रॉब्लम, राइट। तो अगर आप मेंटेन करें अ गुड फैट डाइट, स्पेसिफिकली आपका कोल्ड प्रेस ऑयल्स हो गया, नेचुरल फॉर्म्स ऑफ योर गुड फैट्स हो गए, ये आप ज्यादातर प्रेफर कर लीजिए। दिस इज गोइंग टू बी इजी इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग। एंड हार्ट हेल्थी अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, फैट्स स्पेसिफिकली यू आर गोइंग टू फॉलो along with your natural source of your fat। एंटीऑक्सीडेंट्स भी यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी तरीके से मेंटेन करती है, क्योंकि जब आप रिफाइंड प्रोडक्ट्स कट डाउन करते हैं, रिफाइंड ऑयल्स कट डाउन करते हैं, हमारे बॉडी में दो तरीके की एक फैट की ऑप्शंस होती है, गुड फैट्स की ऑप्शंस अगर हम देखेंगे, एक है आपका ओमेगा 3 और एक और है आपका ओमेगा 6। जब आप एक्चुअली आपके डाइट में यू टेक इन गुड अमाउंट ऑफ गुड फैट्स, ठीक है, आपका ओमेगा 3 का रेशियो अच्छा खासा बढ़ती है, एंड ओमेगा 6 का रेशियो इट इज क्वाइट वेरी बैलेंस्ड आउट, लोअर एंड पर यहाँ पर रहती है। बट जब आप रिफाइंड प्रोडक्ट्स ज्यादातर लेते हैं, राइट, रिफाइंड ऑयल ज्यादातर लेती है, ये जो आपका बैलेंस होती है आपके ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशियो आइडियली 2:1 के रेंज पे हमें मेंटेन करनी होती है। ओके, मतलब डबल द क्वांटिटी ऑफ ओमेगा 3 शुड बी हायर इन द बॉडी, एंड ओमेगा 6 आपका लोअर कॉन्सेंट्रेशन में होनी चाहिए। बट जब आप रिफाइंड प्रोडक्ट्स लेते हैं, ये क्या होता है, आपका रेशियो उल्टा हो जाती है, ओमेगा 6 बढ़ जाती है और ओमेगा 3 कम हो जाती है। तो ये क्या क्रिएट करता है, हमारे बॉडी में और ज्यादा इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती है, राइट। तो ये हमारा बॉडी में उल्टा रिएक्शन होती है। सो हमें क्या फोकस करनी, ऑन द गुड फैट्स के ऊपर ज्यादा फोकस जब करेंगे, ये जो आपका 2:1 रेशियो है, एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह भी ये काम करेगा। किसी भी तरीके के रिस्क, हार्ट रिलेटेड इश्यूज, ये काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर भी रिड्यूस करेगा। एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इज आल्सो गोइंग टू हेल्प इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग। आप नेचुरल फॉर्म पर ले लीजिए, आपका सनफ्लावर सीड्स हो गया, पंपकिन सीड्स हो गया, आपका वाटरमेलन सीड्स हो गया, ट्राई टू टेक इट इन द नेचुरल फॉर्म rather than taking it in the refined form of the oils. That is what is important for us to remember. And digestion की अगर हम बात करेंगे, being it in the form of a natural source, right? सारे आपके सात्विक फूड अगर हम देखेंगे, they are organic based vegetables, your fruits, they don't have any kind of your pesticides, clear, बहुत ज्यादा clean होते हैं because of good content of fiber as well। आपके overall gut bacteria को ये प्रमोट करता है। जितना ज्यादा आपका गट बैक्टीरिया इंप्रूव करता है, तो उतना बेटर आपका ओवरऑल बेनिफिट्स इंक्रीज होती है, राइट।
एंड ऑल्सो अलोंग विद दैट ये प्रोबायोटिक्स का जो आपका बेनिफिट है, आपका दही हो गया, छाछ हो गया, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव बेनिफिट रहेगा आपके प्रोबायोटिक्स को भी इंक्रीज करने के लिए। तो आप कोशिश कर सकते हैं कि हर मील में, अगर आप एक सात्विक डाइट फॉलो कर रहे हैं, हर मील में एक छोटा सा बाउल ऑफ दही या फिर एक ग्लास छाछ, उसमें आप क्या कर लीजिए, रादर देन एडिंग इन सॉल्ट, बहुत ज्यादा हाई सॉल्ट, हाई हाई किसी भी तरीके की स्पाइसेस यहाँ पर हो जाती है, आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आप जीरा का पाउडर ऐड कर सकते हैं। दिस इज अ गुड ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, राइट। आप थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं, आपका जो आपके पुदीना है अच्छी तरीके से इसे लाइक ग्राइंड कर कर भी आपके छाछ में आप मिक्स कर सकते हैं। क्यूकुम्बर को भी आप अच्छी तरीके से ग्राइंड कर कर भी आपका क्यूकुम्बर मिंट छाछ भी आप बना सकते हैं। तो वी आर ट्राइंग टू गो अलोंग विथ एज रूट, आप मदर नेचर के साथ बहुत ज्यादा क्लोज होने वाले हैं, राइट, स्टिकिंग अलोंग विद द नेचुरल बेस्ड प्रोडक्ट्स। द बॉडी रिक्वायर्स व्हाट इट नीड्स, नेचुरल बेस्ड प्रोडक्ट्स। अभी क्या होता है, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हमारा एडवांस्ड, वी आर ट्राइंग टू बिकम मोर इनटू द वेस्टर्नाइज्ड कल्चर, तो यहाँ पर ही बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड्स यहाँ पर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। बट अगर आप लुक बैक करेंगे, बैक 20-30 years बैक, आई डोंट थिंक सो कि ये सारे इतने ज्यादा ऑप्शंस हमारे सामने अवेलेबल थे जैसे अभी नाउ इट इज अवेलेबल, राइट। तो these kind of options we are just trying to go back. The only thing that I am trying to convey is कि आपके नाना नानी दादा दादी जो बोल रहे थे, they were always right, right? So making sure that sticking along to the same route what they were also following in terms of food, in terms of food preparation, we are going to follow on the same. एंड ये जब आपका फाइबर इनटेक एंड आपका ओवरऑल प्रोबायोटिक्स का इनटेक विद गुड अमाउंट ऑफ गुड फाइबर एंड गुड बैलेंस अलोंग विद द कार्बोहाइड्रेट जब रहती है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से बैलेंस आउट होती है, राइट। बिकॉज आप किसी भी तरीके की प्रोसेस आइटम्स यहाँ पर नहीं ले रहे। प्रोसेस आइटम्स जब लेते हैं, राइट, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू कॉस्ट इन मोर, बिकॉज ये अपने तरफ बहुत ज्यादा पानी खींच लेती है, which causes in dryness of your entire intestine and passing of the stools भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। नाउ टॉकिंग अबाउट इन्फ्लेमेशन, मैं आपको एक रेशियो आपको बता रही थी, आपका ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशियो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन अ सात्विक डाइट, ऑटोमेटिकली आपका ये रेशियो बैलेंस आउट हो जाती है, बिकॉज यू आर फोकसिंग मोर ऑन योर नेचुरल सोर्स ऑफ योर फैट्स एंड योर कोल्ड प्रेस सोर्स ऑफ योर ऑयल्स। तो ऑटोमेटिकली ये क्या करता है, आपका इन्फ्लेमेशन का रेट को भी रिड्यूस कर देती है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो आपके अच्छा खासा आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स में है, सारे आपके जो कलरफुल वेजिटेबल्स में है अवेलेबल होती है, दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ योर फाइटोन्यूट्रिएंट्स, ये आपका इंक्रीज करती है। एंड स्पेसिफिकली फॉर पीपल जिनका ESR लेवल्स, स्पेसिफिकली जिनका सी पेप्टाइल CRP लेवल्स बहुत ज्यादा हाई लेवल पर होती है, दिस इज बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन। सो व्हेन वी फॉलो इन एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, एक सात्विक डाइट की तरह जब आप फॉलो करते हैं, अ गुड लेवल ऑफ आर ESR अच्छी तरीके से रिड्यूस होती है, राइट। दिस इज वन व्हील, अगर हम देखते हैं यू आर ट्राइंग टू ड्राइव अ कार, तो दिस फूड ऑप्शन अगर हम देखेंगे, दिस इज जस्ट वन व्हील, ओनली वन पर्सपेक्टिव के साथ मैं आपको मेंशन कर रही हूँ, बट वी हैव इन 3 other पर्सपेक्टिव। एक और पर्सपेक्टिव है आपका एक्सरसाइज, यू फॉलोइंग इन अ गुड सात्विक डाइट, बट उसके साथ साथ आपका एक्सरसाइज, आपका योगा, आपका स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ये जरूर कंटिन्यू करते रहिए, दिस इज क्रूशियल। उसके साथ आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि स्ट्रेस भी आपका इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है, राइट। आप कोशिश करिए इन टर्म्स ऑफ डाइट, यू ट्राइंग टू हैव इन अ गुड एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, बट योर स्ट्रेस लेवल्स आर टू द पीक, नो मैटर आप जितना भी कोशिश कर रहे हैं, दिस इज स्टिल गोइंग टू बी इन अ लेवल्ड अप रेंज। तो ये दोनों हम साथ साथ हम बैलेंस आउट करने के लिए कोशिश करते हैं। द थर्ड व्हील दैट आई वाज टॉकिंग इज अबाउट द स्ट्रेस, एंड द फोर्थ डेफिनेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आपका स्लीप। अब जितने अच्छे तरीके से आप रिजुविनेट करते हैं, क्वालिटी ऑफ स्लीप मेंटेन करते हैं, ओनली देन आपका ओवरऑल इन्फ्लेमेशन का रेट भी और ज्यादा बेटर होती है, राइट। एंड सिंस आई वाज मेंशनिंग इन द इनिशियल फेसेस, आपका 3 दोषास या फिर 3 डिफरेंट ऑप्शंस रहती है इन टर्म्स ऑफ फूड, आपका सात्विक, आपका तामसिक एंड राजसिक। आउट ऑफ ऑल स्पेसिफिकली अगर हम स्पाइसेस की बात करेंगे, आपका टर्मरिक एंड जिंजर, ओके। टर्मरिक में है आपका कर्क्यूमिन, ओके, व्हिच इज अ ग्रेट एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, और आपका जिंजर में है आपका जिंजरॉल, ओके। ये दोनों बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है आपके इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए, एंड पर्टिकुलरली अगर हम बात करते हैं आपके सात्विक फूड में,
These two are really very important to make sure that you're including in the diet. आप अवॉइड कर रहे हैं आपका ऑनियन एंड गार्लिक, बट यू आर ट्राइंग टू हैव इन ए गुड ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ योर जिंजर एंड टर्मरिक हियर. ट्राई यूजिंग इन योर रॉ टर्मरिक, ये और ज्यादा बेटर होती है. आपके जिंजर की तरह एक टर्मरिक भी होती है, राइट, विच इज गोइंग टू बी इन द रॉ फॉर्म. ये आप आइडियली यूज कर सकते हैं आपके सात्विक डाइट में कभी कभार इन द मॉर्निंग टाइम एज वेल. व्हाट यू कैन डू, थोड़ा सा 1 इंच आपका जिंजर, 1 इंच आपका रॉ टर्मरिक, थोड़ा सा आपका आंवला, राइट, एंड अ लिटिल बिट ऑफ योर लेमन. यू कैन आंवला आप यूज कर सकते हैं या फिर लेमन, दिस इज एन ऑल्टरनेटिव ओवर हियर. ओके, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज ये सारा आप ब्लेंड कर कर एक छोटा सा डिकॉशन भी आप बना सकते हैं. अ ग्रेट इन्फ्लेमेटरी एंटी इन्फ्लेमेटरी शॉट आप मॉर्निंग के टाइम पर यू कैन ट्राई टू कीप इट ट्वाइस इन अ वीक. वेरी वेरी इफेक्टिव. ये अगर नहीं हो पा रही है आपका जीरा और सौंफ, दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट ऑप्शन. खाना खाने के बाद आप आपका जीरा और सौंफ अच्छी तरीके से आप ड्राई रोस्ट कर कर इसका पाउडर आप बना लीजिए. So after your meals, you can ideally take 1 teaspoon of it and you can just have it. Hot water में थोड़ा सा 1 teaspoon आप add कर लीजिए, 1 cup. You can ideally take it post your meals. धनिया is also a good option. धनिया के जो आपके seeds होते हैं, you can try to boil it up and you can drink this water as well. Great benefit. Okay, inflammation property को यहाँ पर हम target कर रहे हैं reduce करने के लिए, right? अभी अगर हम देखेंगे प्रैक्टिकल टिप्स जो हम फोकस कर सकते हैं, वन थिंग दैट आई हैव बीन टेलिंग यू कि वी विल ऑलवेज स्टार्ट स्लो. ऑल ऑफ अ सडन एंटायर डे ऑल 3 मील सात्विक खाना फॉलो करना, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी डिफिकल्ट. जो फॉलो करते आ रहे हैं इट इज गोइंग टू बी इजी, बट अगर आप शुरू कर रहे हैं लेट्स स्टार्ट स्लो. 1 मील अ डे शुरू करते हैं या फिर 1 to 2 meals इन अ वीक हम शुरू कर सकते हैं. धीरे धीरे यहाँ पर आप इंक्रीज करेंगे, ग्रेजुअल ट्रांसिशन. सेकेंड इज, अगर आप परचेज करने जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू परचेज इन योर ग्रोसरीज, योर वेजिटेबल्स, गो सेल्फ. डू नॉट मेक श्योर दैट यू आर ऑर्डरिंग इट फ्रॉम आउटसाइड. स्विगी, इंस्टामार्ट से आप अगर ऑर्डर कर रहे हैं, एटलीस्ट वंस और ट्वाइस, बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस आपके पास टाइम नहीं है, वंस और ट्वाइस यू कैन ट्राई डूइंग दैट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेफर कर लीजिए कि यू योर सेल्फ गो टू द मंडी, परचेज इन द वेजिटेबल्स, चेक इन द फ्रेशनेस, द क्वालिटी, और आप परचेज कर रहे हैं. या फिर किचन गार्डन भी आप डेफिनेटली ग्रो भी कर सकते हैं, सो दैट यू कैन आइडियली प्रोक्योर योर ओन वेजिटेबल्स. एक छोटा सा फार्म भी कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो गुड ऑप्शन. ओके, ये अनदर चॉइस है दैट वी कैन डेफिनेटली गो हेड अलोंग विद. एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज प्लानिंग योर मील्स अहेड. अगर आप पहले से ही प्री प्लान कर लेते हैं कि ओके दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू फॉर माय ब्रेकफास्ट टुमारो, फॉर माय लंच टुमारो, फॉर माय डिनर टुमारो, तो ये काफी ज्यादा आपका टाइम सेविंग भी हो जाती है. एडवांस प्लानिंग. If you go to the kitchen and then you think, okay, what am I going to do? You keep checking in you keep checking in your fridge क्या क्या vegetables है. This is going to take in a lot of time. तो पहले से ही हम प्री प्लान कर लेते हैं. This is going to be a great benefit to save in a lot of your time as well. और ट्रांसिशन भी बहुत अच्छी तरीके से आप यहाँ पर बिल्डअप कर पाएंगे. ओके, तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे, एज आई वाज टॉकिंग अबाउट, द कार हैज 4 व्हील्स. वैसे ही एक व्हील तो है आपका फूड, बट व्हाट अबाउट द अदर 3 व्हील्स अगर हम देखेंगे, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, माइंड बॉडी का कनेक्शन के साथ जो होती है, आपका स्लीप क्वालिटी, आपका एक्सरसाइज, ऑल ऑफ दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. आपका इमोशनल का हार्मनी, मतलब इमोशनल बैलेंस शुड बी रियली वेरी वेल. ये एक सीसॉ की तरह होती है, राइट, योर फूड एंड योर माइंड. So we need to make sure that the food that we are taking and the mindset that we are having should be balanced out here. That's what यहाँ पर mindful eating का बहुत ज्यादा important factor होती है, right? हमारे body में ideally we have 5 senses, right? आपका eyes, your vision, your sense of touch, your sense of hearing, your sense of smell, and आपका sense of taste. Okay? वन सिंपल थिंग, मतलब अगर आप शुरू भी कर रहे हैं 1 मील से, अगर आप शुरू कर रहे हैं, वी कैन स्टार्ट विद दिस. लाइक फॉर एग्जांपल, आप एक एप्पल ले रहे हैं, तो आप ये 5 सेंसेस को एक्टिवेट कैसे करेंगे? पहले आप एप्पल को पकड़ेंगे, सो यू आर टचिंग इन द एप्पल, यू आर आइडियली इंक्रीजिंग इन द सेंस ऑफ टच हियर. देन यू आर लुकिंग एट द एप्पल, राइट, उसका कलर, उसका ओवरऑल टेक्सचर, ये देखेंगे. यू आर ट्रिगरिंग इन योर सेंस ऑफ योर विजन हियर. फिर उसके बाद आप स्मेल करेंगे फूड को. You are trying to increase in the overall sense of your smell, correct? फिर उसके बाद आप actually bite करेंगे. While you're biting, you're hearing it, right? आप सुन रहे हैं कि आपका एप्पल का क्रंचीनेस कैसा है, इसका टेक्सचर कैसा है, च्यू कर रहे हैं,
राइट, एंड यू आर टेकिंग इन अ स्मॉल पॉज. मेक श्योर कि ये पॉज जब आप ले रहे हैं, यू आर आइडियली टेकिंग इन द टेस्ट ऑफ द फूड. राइट, यहाँ पर आपका सेंस ऑफ टेस्ट जो भी होती है, राइट, यू आर गोइंग टू मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग इन द सेंस ऑफ दिस, and you're making sure कि you're chewing in your food properly, slowly, and then you're swallowing it. क्योंकि यहाँ पर mindful eating is really very important. In fact, I just wanted to share in one of my own experience. I had a patient of mine. ये क्या होती है कि every weekends पर इनका post meal का sugar levels काफी अच्छी रह रही थी, but weekdays में it was quite very spiking up. Meals were almost the same, उतना ज्यादा difference नहीं है. Meal portioning was also right, everything was right, meal sequencing was also there, फिर भी इतना ज्यादा difference. खाना खाने के बाद वीकडेज में हमारा 200 के आसपास जा रही थी, बट वीकेंड्स में इट वाज ओनली 130s 140s. व्हेन वी ट्राइड ब्रेकिंग इट डाउन, पता चला कि ये वीकडेज में क्या कर रहे थे, बिकॉज ऑफ हैवी स्केड्यूल मीटिंग्स ही डिडंट हैव इन मच इनफ टाइम फॉर हैव हिज फूड. तो वो क्या कर रहे थे, क्विकली ही यूज्ड टू ईट हिज फूड. माइंडफुल ईटिंग था ही नहीं, तो 5 मिनट्स में लंच ओवर. बट वीकेंड्स में क्या हो रहा था, ही हैड एन एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, ही सैट अलोंग विद हिज फैमिली, had slowly the food, कोई भी distractions नहीं था, family get together था, and the same kind of food was showing in really great results, right? तो यहाँ पर mindful eating plays a very important role. chew in your food, ऐसा नहीं है कि आपको 32 times आपको chew करना है food को. It just means that chew in your food slowly, okay? Absorb in the food, be gratified to your food, thank that the food is there in front of you. एक छोटा सा prayer just to make sure कि आप calm down करें आपके body को. जो आपका लंच ब्रेक्स होते हैं, that 20 to 25 minutes, make sure that you're devoting that time for your food. I know कि work overall routine होती है, but that 20 minutes time just devoted to your food. ओके तो आपका ओवरऑल किसी भी तरीके की डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती है, पोर्शन कंट्रोल भी बैलेंस आउट हो जाती है, एंड देयर इज अ ओवरऑल गुड कंट्रोल ऑफ द शुगर्स एज वेल. ओके, so one habit that we have been already been focusing कि आपका कैलोरी रिस्ट्रिक्शंस, राइट. एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वी हैव बीन फॉलोइंग दिस ऑलरेडी. फूड का पोर्शन 25 25 50% रूल. बट वन थिंग दैट लेट्स ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप खाना खाते हैं, लेट्स नॉट ट्राई ईटिंग 100% ऑफ द मील. थोड़ा सा गैप रखिए, ट्राई ईटिंग दैट 75 to 80% मैक्स. ओके, दिस इज गोइंग टू मेक श्योर कि आप ओवरडो तो नहीं करें इन टर्म्स ऑफ फूड. और कभी कभार क्या होता है, खाना इतना ज्यादा जब हम खा लेते हैं, नींद आने लगती है, राइट, विच इज कॉल्ड एज योर फूड कोमा. तो इसमें क्या होता है, यू आइडियली जस्ट वांट टू लीव एवरीथिंग असाइड एंड जस्ट गो टेक इन अ नैप. इनिशियल फेजेस पर आपको डेफिनेटली ये हुआ होगा व्हेन वी वर टेकिंग एन हायर पोर्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स. बट जब आप धीरे धीरे प्रोटीन पोर्शन को, आपके वेजिटेबल पोर्शंस को ग्रेजुअली इसे बढ़ाते हैं, you would have definitely noticed that you feel much more active throughout the entire day, right? One such thing in terms of calorie restriction या फिर आपका पोर्शन कंट्रोल की बात अगर मैं करूं, this is something that every one of you must be knowing, is called as the blue zone. I really want you to understand this. ये जो blue zones होते हैं, these are specific places of the world where they have been following a calorie restriction. एंड इसका ओवरऑल अगर हम देखेंगे पीपल ऑफ देयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यू विल बी सरप्राइज टू सी दैट इट इज गोइंग अबव 100 years. ऐसा एक प्लेस है आपके जापान में विच इज कॉल्ड एज योर ओकिनावा आइलैंड्स. ओके, अब ये ओकिनावा आइलैंड्स में क्या होता है, दे फॉलो इन अ रियली माइंडफुल ईटिंग हैबिट. और उनका अगर पोर्शन साइज आप देखते हैं, जापानीज के लोग अगर हम देखेंगे उनका मील का पोर्शन साइज देखेंगे, they don't have in large plates, they have in all small plates. राइस का पोर्शन भी अगर हम देखेंगे इतना सा छोटा सा कप ही होता है, वेजिटेबल का पोर्शन बड़ा सा बाउल होती है, they have all small sizes, right? तो वो क्या करते हैं, पोर्शन कंट्रोल के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं. they stick more towards the mother nature, they try staying more towards the nature. ओके, तो ये एक छोटा सा आइलैंड है, इट्स नॉट इन जापान बट इट्स अ वेरी स्मॉल आइलैंड नियर बाय टू जापान वेयर दे फॉलो इन दिस टेक्निक. एंड सरप्राइजिंगली अगर आप देखेंगे, इनका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, इट इज ऑलवेज अबव 100. इनफैक्ट अगर आप इंडिया में भी देखेंगे, मोस्ट ऑफ द पीपल हु आइडियली हैव बीन फॉलोइंग इन अ वेरी गुड डाइट,
ओल्डन एज में अगर हम देखेंगे, who have been following in a perfect good amount of diet, making sure कि उनका लाइफस्टाइल रूटीन अच्छा खासा एक्टिव होती है, they don't have in the effect in terms of increasing in that weight, they are able to maintain in that weight stature overall, और उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी धीरे धीरे बढ़ती है। ओकिनावा की तरह ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, जैसे सार्डिना हो गया, निकोनिया हो गया, दे हैव इन ऑल ऑफ अ वेरी सिमिलर काइंड ऑफ अ पोर्शन कंट्रोल एंड अ डाइटरी पर्सपेक्टिव, और उनका एज ग्रुप इज ऑलवेज अ वेरी सिमिलर पार्ट अबव 100, 105, 110. In fact, there was a recent news, the longest like living individual was around 132. और अगर हम देखेंगे, this individual was also from the blue zone category, राइट? और ये देर इज अ वंडरफुल बुक, इट्स कॉल्ड द इकिगाई। यहाँ पर ब्लू जोन के बारे में काफी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। डेफिनेटली आई वुड बी सजेस्टिंग यू कि आप जरूर, अगर पढ़ते हैं, इफ यू लाइक रीडिंग, यू कैन डेफिनेटली ट्राई रीडिंग दिस बुक कॉल्ड इकिगाई। वंडरफुली मेंशन किया गया है ये ब्लू जोन के बारे में, कैलोरी रिस्ट्रिक्शंस के बारे में, स्टिकिंग अलोंग विद द नेचर, मदर नेचर के साथ जितना आप अच्छी तरीके से डाइट फॉलो करते हैं, देयर इज अ गुड पाथवे इन टर्म्स ऑफ लॉन्गेटिविटी, राइट? तो ओवरऑल कंक्लूजन के साथ अगर मैं आपको बताऊं, देर इज अ लॉट ऑफ बेनिफिट सात्विक डाइट में जब हम फॉलो करते हैं, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ हार्ट हेल्थ, डायबिटीज, वेट मैनेजमेंट, एज नेहा वाज आल्सो मेंशनिंग, आपके स्किन हेल्थ भी अच्छी होती है बिकॉज यू आर पुटिंग इन गुड फूड्स इनसाइड योर बॉडी। सस्टेनेबल भी है, लॉन्ग टर्म के लिए भी आप फॉलो कर पाएंगे, विच इज गोइंग टू हैव इन अ गुड बेनिफिट ओवरऑल। ओवरऑल अप्रोच के अगर हम देखेंगे, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड इफेक्ट पार्ट हियर। ओके, right, so I'm just stopping to share my screen and we can definitely start along with the questionnaires as well. And जो भी doubts, कोई भी issues है, I hope this session was quite very interesting and very simple. But अगर हम deep dive करेंगे, it is a very vast topic. सात्विक डाइट के साथ अगर हम देखेंगे, it's a very vast topic. बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा. Step by step, we can definitely keep going ahead along with it, right? Okay, so we can start along with the questionnaires. Maybe you can keep dropping in your questions as well. ये काफी ज़्यादा easy रहेगा. I think many people have actually asked about the Telugu session. So generally what happens is this Saturday, Sunday का जो आपका sessions होती है, every Saturdays you will be having the Telugu session and every Sundays it is going to be the English and Hindi. So those who have actually asked for the Telugu session, it is going to be on those Saturdays. You can definitely try joining there. It will be easier. Okay, so many people have actually said that they have started along with cold press. It's a great option. Cold press के आजकल बहुत सारे varieties आते हैं. In fact, nowadays you're getting in cold press making machines also. You can try making in the cold press oils at home as well. You just need to purchase in your maybe your sunflower seeds या फिर आपके mustard seeds हो गया, groundnut हो गया. You purchase it as it is, and this small machine you can ideally keep it at home. Small batches, fresh batches आप prepare कर सकते हैं. A great option here. How to make nut butters at home? It's very simple. Say for example, आप almond butters ले रहे हैं या फिर आप peanut butter prepare कर रहे हैं. You just need to take in your nut and you just need to keep blending it. क्योंकि इसके अंदर already you have in the oil. You just don't need to add in any kind of oil or you don't need to add in anything else. थोड़ा सा आपका nut butter, a little, if you want a pinch of your salt, you can definitely add. Okay, and ये अच्छी तरीके से आप blend करते रहेंगे till the time it becomes completely a smooth paste. And ये आप ideally use कर सकते हैं. You can ideally do it along with anything. अब अगर आप like for example you're trying to make an a pure sattvic diet but you want something where your gravy has to be creamy, तो आप क्या कर सकते हैं, आपका nuts जो होती है या फिर आपका seeds होती है, इसे अच्छी तरीके से fine paste कर कर also you can add it to your gravy. That itself will produce its own good fat. बहुत अच्छा option है ये जो आप follow कर पाएंगे. ओके, नाउ राइस ब्रान ऑयल अगर हम देखेंगे, राइस ब्रान ऑयल यू अगेन हैव टू बी क्लासिफाइंग दिस इनटू अ रिफाइंड प्रोडक्ट, राइट? बट राइस ब्रान ऑयल से अगर हम देखेंगे, नाउअडेज यू जस्ट नीड टू हैव इन अ चेक ऑफ द लेबल्स. कोल्ड प्रेस्ड है या फिर एनीथिंग एल्स दैट हैज बीन एडेड, जस्ट हैव इन अ सेग्रीगेशन विद इट. ओके, तो ये काफी ज्यादा इजी भी रहेगा आपके लिए ओवरऑल अंडरस्टैंड करने के लिए. स्टार्ट रीडिंग इन द लेबल. The more you educate yourself, the more you see what exactly you're eating, right? आप बहुत ज्यादा aware भी रहेंगे. So you know what exactly you're putting inside your body. Okay?
What is the quantity of nuts and seeds that has to be taken like your pumpkin seed? ठीक है, आपका जो nuts का requirement होती है, right, per day basis पर, let's not cross beyond 2 to 3 tablespoons. 1 tablespoon आपका maximum है, 15 grams. Okay, so in a day, say for example, in the morning hours, you're taking few 4 to 5 pieces of your nuts and seeds. तो मिड मॉर्निंग के टाइम पे या फिर जब आप फ्रूट्स ले रहे हैं, यू कैन ट्राई कीपिंग 1 or 2 spoons along with it. दैट इज मोर देन इनफ. ये ओवरऑल आपका नट्स आपका गुड फैट्स का रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर कैचअप कर लेता है. मैक्सिमम टॉलरेबल लिमिट होता है आपका 20 grams इज व्हाट वी रिक्वायर हियर. ओके, many people are taking nuts and seeds. ये काफी ज्यादा अच्छी ऑप्शन है. Always try pairing it up along with your fruits. This is the best way that you can try introducing. Few people don't like in the taste. आप क्या कर लीजिए, आप dry roast कर लीजिए. Specifically with flax seeds, try dry roasting all of the seeds and you can try to make it into a powder form. थोड़ा सा आप लड्डू की तरह बना सकते हैं. और what you can do is whenever you are making in your rotis, आप कोशिश कर लीजिए कि 2 to 3 spoons of this powder you can add it to your rotis. ऑटोमेटिकली आपका नट्स एंड सीड्स का इंक्लूजन यहाँ पर कवर अप हो जाएगा. ओके, इन्फ्लेमेशन इज नथिंग बट आपके जैसे आपको चोट लग जाती है, राइट, यू आइडियली हैव इन एनी काइंड ऑफ द आउटर अपीयरेंस, बहुत ज्यादा सूजन पड़ जाती है. दिस इज द आउटसाइड साइड. बट इनसाइड साइड में अगर आपको किसी भी तरह की सूजन, अंदरी सूजन अगर होती है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेमेशन. ओके, यस. Now, diabetic, hypertensive patient, which type of oil is good? Normal mustard oil, cold press oil, refined oil. Ideally, cold press oil is what is better. Okay, and cold press oil अगर आप use करते हैं, there is a very easy technique that you can follow. Don't add the oil first. Try boiling in the vegetables first. तो ये सात्विक डाइट में एक सिंपल सा टेक्निक मैं आपको मेंशन कर लेती हूँ. आप थोड़ा सा वेजिटेबल को पहले कुक कर लीजिए. ओके, एंड कुकिंग टेक्निक अगर मैं आपको मेंशन करूं इन टर्म्स ऑफ यूटेंसिल्स, यू कैन ट्राई यूजिंग इन योर क्ले यूटेंसिल्स. आयरन कास्ट कढ़ाईज इज अ ग्रेट ऑप्शन, राइट, या फिर आपका ब्रास कंटेनर्स, ये एक अच्छा ऑप्शन है. ओके, इफ यू आर गोइंग अलोंग विथ योर टेफलॉन कोटिंग या फिर इफ यू आर गोइंग अलोंग विथ योर नॉन स्टिक कुकवेयर, मेक श्योर कि अगर आप यूज कर रहे हैं, दिस टेफलॉन कोटिंग शुड बी इंटैक्ट. अगर किसी भी तरीके की स्क्रैच आ जाती है या फिर किसी भी तरीके की क्रैकिंग्स अगर आ जाती है, इट मीन्स दैट द टेफलॉन इज आइडियली बीन लीच्ड इनटू आवर फूड. और ये लॉन्ग टर्म के लिए इट इज नॉट वेरी गुड, क्योंकि ये आपके हार्मोन्स को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है. ओके, ट्राई यूजिंग इन योर नॉर्मल, आपका स्टेनलेस स्टील हो गया, दिस इज समथिंग दैट यू कैन आइडियली यूज. आपका क्ले पॉट्स हो गया, मटकास हो गया, या फिर आपका ब्रास कंटेनर्स हो गया, आयरन कास्ट कढ़ाई होगी, दे आर गोइंग टू बी ऑल ऑफ दीज ओल्ड यूटेंसिल्स, वो आप जनरली यूज कर सकते हैं. अल्यूमिनियम भी अगर आप लॉन्ग स्टैंडिंग के लिए यूज करते हैं, दिस इज अगेन गोइंग टू कॉज इन टू मच ऑफ आर न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस एज वेल. ओके, तो ये लिमिटेड आप कर सकते हैं. yes, the book's name is Ikigai, Ikigai. This is going to be helpful. Pots are ideally, generally, if suppose you're purchasing new pots, Raju sir has ideally been asking. Pots, you can generally get it from the pottery as well. जो आपका normal clay pots होती है, right? That one you can definitely keep using it.